أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے بڑی خوبیوں اور بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا اور بہت بڑے باتوفیق علماء اور محدثین میں تھے اور بہت بڑے درجے کے فقیہ تھے. چنانچہ مشہور ہے کہ بخاری فی تراجمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف میں تراجم قائم کیے ہیں یعنی عنوانات قائم کیے ہیں، ان عنوانات سے بہت سارے مسائل جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ فرمایا ہے. چنانچہ انداز بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تمام محدثین سے جو ہے وہ نرالا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز الباب جو ہے اہل علم اور تحقیق کے واسطے ایک مستقل عنوان ہے. اس سلسلے میں امام بخاری کے تراجم کے مضمون میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی الابواب التراجم ہے اور دوسرے حضرات کی بھی ہے اور پھر ہمارے حضرات علماء دیوبند کی جو شروحات ہیں اسی طریقے سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جن حضرات نے بخاری شریف کی شروحات لکھی ہیں انہوں نے ان ابواب سے کیا مسائل نکلتے ہیں ان کو بہت ہی بھلے اور عجیب انداز سے بیان فرمایا ہے. اور جو بھی بخاری شریف پڑھاتا ہے وہ ان عنوانات کو اور اس کے تراجم سے نکلنے والے مسائل کو بیان کرتا ہے ہر پڑھانے والا، اور ہر ایک کے واسطے اس میں جگہ بھی چھوڑ رکھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس عنوان سے کیا بتانا چاہتے ہیں اس کو متعین طور پر ہر باب میں نہیں کہہ پاتے لوگ، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نیت کیا تھی، اس سے کیا کیا نکالنا چاہتے تھے، وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں. لیکن کسی کی عبارت سے جو مسائل نکلتے ہیں اور اس سے جو مضامین نکلتے ہیں ان مضامین سے عنوان قائم کرنے والے، ترجمہ قائم کرنے والے کے حضرت شان کا پتہ چلتا ہے کہ ایک باب میں کتنے شقیں جمع کر دیا ہے اور کیا انداز جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمیٹ دیا بخاری شریف کے باب میں. وہ ان حضرات کو پتہ چلتا ہے جو حضرات بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور جن طلباء کے سامنے وہ ابواب اور ان سے نکلنے والے مسائل آتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے پہ آتے ہیں تو مختلف ابواب میں ایسے انداز سے باب قائم کرتے ہیں کہ ان ابواب کو ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو کئی ابواب میں مسئلے کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں. پھر جہاں متعدد ابواب ہیں وہی ایک ہی مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. ہر باب مستقل ہے، ہر ترجمہ مستقل ہے اور اس کے تحت میں مستقل مضامین اور متعدد مضامین
उनसे साबित होते हैं। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला ने ऐसी तौफीक से नवाजा था और ऐसा इखलास अता फरमाया था, ऐसा दीन का दाइया और जज्बा नसीब फरमाया था कि बड़े ही एहतमाम के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है और हर हदीस के वास्ते मुस्तकिल जो है गुस्ल और वज़ू फरमाया है और उसके साथ साथ उस हदीस के मालहू माले को देखते थे और सोचते थे, उसके रिजाल को देखते थे, यानी जिन हजरात से रवायात नकल होती आई हैं वो कैसे हजरात हैं। इसी तरीके से हदीस का मकाम फिर क्या बनता है। जब 2 रकात नमाज पढ़ते थे और उसके बाद जब इंशराह होता था तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस हदीस को अपनी किताब में जमा फरमाते थे। इतने एहतमाम के साथ किसी किताब को जमा करना और बुखारी शरीफ के आज के सफ़हात के लिहाज से 129 सफ़हात में किताब को जमा करना 16 साल की मुद्दत लगी है। हमें 16 साल की मुद्दत बहुत नज़र आती है, लेकिन जिस एहतमाम के शान के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जमा फरमाया है, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की करामत ही कही जाएगी कि 16 साल में इस कदर एहतमाम के साथ, इस कदर तहकीकात के साथ को जमा फरमाया। तो फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब को शरफ़ कबूल हासिल हुआ और ऐसा शरफ़ कबूल हासिल हुआ कि बाद किताबुल्लाह ताला जो है बुखारी शरीफ की जो है असाहुल कुतुब कही जाती है। हैत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मुअत्ता शरीफ मुअत्ता मालिक तो कहा जाता है। मुअत्ता इमाम मालिक पहले ज़माने में तमाम हदीस की किताबों में असाहुल कुतुब समझी जाती थी, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बुखारी शरीफ तालीफ फरमाने के बाद जो है इस पे इस किताब का उन्वान दे दिया गया। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मुअत्ता मालिक का मकाम घट गया, नहीं। मुअत्ता मालिक में मुख्तसर रवायात थी, बुखारी शरीफ में बहुत ज़्यादा रवायात आईं और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता इमाम मालिक के रवायात को लेकर के बुखारी शरीफ में शामिल फरमाया। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी बात है, मैं ज़रा सा इशारा करना चाहता था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी मेहनत किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब बुखारी शरीफ को बदुल वही से शुरू किया है और ये किताब सही कही जाती है और जामे कही जाती है, जामे कही जाती है। इमाम मुस्लिम की किताब को भी जामे कहा जाता है, इमाम तिरमिज़ी की किताब को जामे भी कहा जाता है, सुनन भी कहा जाता है। जामे के अंदर जो 8 मज़ामीन होते हैं और बुखारी में भी हैं और मुस्लिम शरीफ में भी हैं और तिरमिज़ी शरीफ में भी हैं, लेकिन तिरमिज़ी शरीफ की तरतीब चूँकि अबवाब फ़िक़हिया की तरतीब पर हुई है, इस वास्ते उसको सुनन कहा जाता है, सुनन भी कहा जाता है और जामे भी कहा जाता। क्यों? जामे में जो मज़ामीन होते हैं इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सबको जमा फरमा दिया है। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को बाब बदुल वही से शुरू किया है। तमाम मुहद्दिसीन किराम के अंदाज से अलहदा इख्तियार किया है। जामे की जो किताबें हैं उन किताबों में किताबुल ईमान को पहले जिक्र किया गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले बदुल वही को जिक्र किया है। ये उनका एक निराला अंदाज है और उसकी वजह शुर्राह और मुहद्दिसीन ये बयान फरमाते हैं कि वही जो है वो तमाम उलूम की क्या है, बुनियाद है। अब किताब में जितने मज़ामीन आएंगे किताबुल ईमान से लेकर के जो है इस आखिरी बाब तक और किताबुल तौहीद पर सबकी बुनियाद किस पर है?
सबकी बुनियाद वही पर है। आप हजरात ने पढ़ा होगा कि वही की जो है दो किस्में हैं, एक वही मतलू है जो कुरान करीम है, और एक वही गैर मतलूब है जिसको हदीस पाक से ताबीर किया जाता है। तो अब क्या है, वही के अंदर दोनों तरह के मज़ामीन आ गए। तो वही भी पर क्या है, सारे उलूम की बुनियाद कायम है। वही पर सारे उलूम की बुनियाद कायम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का क्या ज़हन था और उनकी रसाई कैसी थी, उन्होंने एक अजीब और निराला अंदाज इख्तियार किया। निराला अंदाज इख्तियार करना हर एक के बस का नहीं है। इस वास्ते जब कोई नई चीज़ इख्तियार करता है, नया अंदाज इख्तियार करता है, तो उस पर जो है बहुत कुछ लोग कहने वाले कहा करते हैं। मगर इमाम बुखारी के इस अंदाज पर क्या हुआ, सारे मुहद्दिसीन उलमा ने क्या किया है, इमाम बुखारी की मदहसराई किया है और उनके दिमाग की क़ुव्वत और दिमाग की रसाई की जो दाद दिया है। बहरहाल इस तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले बदुल वही को जिक्र किया और फिर तमाम उलूम में, तमाम आमाल में जो ईमान का दर्जा है वो सबसे पहले है। इस वास्ते किताबुल ईमान को जिक्र किया है और ईमान ही पर मदार सारे दीन का है। अब ये कहा जाता है कि इमाम बुखारी की किताब तो किताबुल ईमान से शुरू हुई है और इमाम बुखारी की किताब किताबुल तौहीद पे ख़त्म हुई है, और बदुल वही को कहा जाता है मुक़द्दमे के दर्जे में है। ये मुक़द्दमे के दर्जे में है। अब क्या हुआ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो शुरू है उसमें और इसके आखिरी किताब में किताब तौहीद में क्या हो गया, जोड़ हो गया। किताबुल ईमान भी एतक़ादियात और इल्म कलाम से ताल्लुक़ रखती है। वही तरीक़े किताब तौहीद भी क्या है, अक़ायद से और ईमानियात से ताल्लुक़ रखती है। तो गोया ईमानियात पे शुरू किया है और ईमानियात पे ख़त्म किया है। इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान में हदीस नीयत से शुरू किया है। हदीस नीयत, नीयत पर क्या है, बुनियाद है। नीयत पर बुनियाद कायम होते हैं। नीयत क्या है, नीयत ही पर तमाम आमाल की बुनियाद है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, जैसी नीयत होती है उसी तरह से क्या नाम उस पर आगे अजर वगैरह मुरतब होता है और कबूलियत मुरतब होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान से शुरू फरमा करके किताबुल ईमान में नीयत की किताब को शुरू फरमा करके, नीयत के बाब को शुरू फरमा करके जो है हमारी नीयतों को दुरुस्त करवाया, हमारी नीयतों को करवाया। और उसके साथ ये हमें तंबीह किया है कि आगे जितने आमाल आ रहे हैं उन तमाम आमाल का मदार जो है वो नीयत पर है, कबूल नीयत से मुरतब होगा। उसके साथ साथ जो है पहली हदीस जो है जो जिक्र किया है किताबुल ईमान में, ईमान की और इखलास की जिक्र किया है। और आखिरी बात जो कायम किया है वो बाब कौलिल्लाह ताला व नज़ुल मवाज़िन क़िस्त यौमिल क़ियामा वज़न आमाल का जिक्र किया है। मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारी नीयतें जो हैं किस नीयत के साथ अमल किया है और किस अंदाज से किया है, वो सब का सब क़यामत के मैदान में क्या है, जहाँ अव्वलीन आखिरीन सारे हजरात जमा होंगे, उन सब हजरात के सामने उसको तौल दिया जाएगा, सब तौल दिया जाएगा। अल्लाह ताला को तौलने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीज़ को जानने वाले हैं, बारीक से बारीक चीज़ को पैदा करने वाले हैं। अल्लाह के इल्म में सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक निज़ाम कायम फरमाया है और अव्वलीन आखिरीन के सामने, सबके सामने हुज्जत कायम करना मकसूद है कि फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया। हर इंसान के साथ दो फरिश्ते मुकर्रर हैं, उन पे मुसल्लत किए गए हैं ताकि उनकी नेकियां और बदियां नोट करते रहें और पूरे ज़िंदगी के जो है आमाल अक़वाल सारी चीज़ें जो हैं उनकी नोट होती रहती हैं। एक इंतज़ाम है। ये तरीके से क़यामत के मैदान में
अल्लाह ताला जो है हाथ से और आज़ा व जवारे से जो है सवाल करेंगे। वो आज़ा व जवारे हमारे आमाल के बारे में बयान करेंगे। आज़ा भी क्या करेंगे? गवाही देंगे। तो आज़ा का गवाही देना ही तरीके से किरामन कातिबीन का क्या है? लिखना। इस तरीके से और भी बहुत सारी शक्लें अल्लाह ने बयान फरमाया है, मुकर्रर फरमाया है, जिससे क़यामत के मैदान में सबका किया कराया और सब कच्चा चिट्ठा पक्का जो कुछ होगा वो सबका सब निकल आएगा और निकल जाएगा। वहाँ किसी को मजाल दम ज़दन नहीं होगी, कोई इनकार नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से वहाँ वज़न आमाल होगा, आमाल को वज़न किया जाएगा। इस पे ख़त्म करके और किताब को किताब नीयत से शुरू करके, बाब नीयत से शुरू करके ये बता दिया क्या नाम कि आमाल के अंदर जो वज़न होगा वो इखलास के लिहाज से होगा। जैसे हमारे और आपके बात का कोई वज़न मालूम होता है, किसी तराजू से तौला जा सकता है, किसी बटखरे से तौला जा सकता है, नहीं तौला जा सकता है। लेकिन हम और आप कह दिया करते हैं किसी की बात पे बड़ी वज़नदार बात कह दिया, बड़ी वज़नदार बात कर दिया। और क्या कह दिया करते हैं? तुमने तो बड़ी हल्की बात कह दिया, बड़ी हल्की बात कर दिया, सबकी तखफीफ कर दिया। इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो हमारे जो ज़ुबान से बातें निकलती हैं वो भी वज़नी भी हो सकती हैं और हल्की भी हो सकती हैं। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में वज़न का बाब जिक्र करके और शुरू से जोड़ दिया कि इखलास के लिहाज से क्या होगा? आमाल में वज़न होगा। ये थोड़ी सी मुनासबत जो है इब्तिदा से जो है बयान कर दी गई। और भी मुनासबत बयान की जाती है। पहली हदीस हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, वो मुहाजिर हैं। और इसी तरीके से आखिरी हदीस अबू हुरैरा की है रज़ी अल्लाह अन्हु, मुहाजिर हैं। तो मुहाजिर की हदीस पे शुरू किया और मुहाजिर हदीस पे क्या किया? ख़त्म कर दिया गया। इसी तरीके से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मुकर्रमा से तशरीफ़ लाए और इस लिहाज से मक्की रिवायात जो की गई और अंसार भी का नाम की उनके लिहाज से जो है क्या है? दीन में दो चीज़ें हैं मक्की, कुछ आयात मक्की हैं, कुछ मदनी हैं, कुछ रवायात मक्की, कुछ मदनी हैं। इस तफसील में देर जाएगी। बहरहाल यहाँ जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम फरमाया, बाब कौलिल्लाह ताला व नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हालत शरीफा पूरी किताब में ये रही है कि जो मसला कुरान करीम से साबित होता है उसकी आयत उसके वास्ते कुरान करीम की आयात को जिक्र करते हैं। इसी तरीके से हदीस से साबित होता उसके बाद क्या करते हैं? अहादीस को भी जिक्र करते हैं। और बाद मरतबा ऐसा होता है कि बाप कायम करते हैं और हदीस जिक्र नहीं करते हैं, वो डाल देते हैं कि आप भी तलाश करो और दूसरी किताबों में तलाश करके देखो कि हमने बाप कायम कर दिया, ये बाप क्यों कायम किया है और इस किससे मसला साबित है। बाद मतलब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो शुरूत हैं, शराइत हैं, उसकी शान के मुताबिक रिवायत नहीं होती है तो बाप कायम कर जिक्र देते हैं कि मतलब ये मसला साबित है और अहादीस से साबित है। लेकिन मैंने जो उसका एक अंदाज मुकर्रर किया है उस अंदाज पर रिवायत नहीं है, इस वास्ते जो है छोड़ देते हैं रिवायत को। और कभी ऐसा हुआ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताब शुरू किया है तो एक तरफ से नहीं लिखा है, मुख्तलिफ कापियों में रवायात जमा करते गए, क्योंकि जो आदमी तहकीकी होता है वो जल्दी से कोई बात नहीं लिख देता है, पूरी तहकीक करने के बाद लिखता है। इसके बाद मौक़ा को कह दिया आता है। ऐसा लगता है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बयास छोड़ी थी, यानी जगह छोड़ रखी थी कि यहाँ हदीस बाद में लिखेंगे, लेकिन जो है मौका नहीं मिला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उस जगह लिखने का इसलिए छोड़ दिया गया। ये बातें तो आप हज़रात सुन चुके होंगे।
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت مستمرہ کے لحاظ سے جو ہے اس باب کو قرآن کریم کی آیت سے شروع کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قائم کریں گے میزان عدل کو قیامت کے دن، نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ موازین جو ہے موزون کی جمع ہے، تو مطلب کیا ہے، اعمال کو تولا جائے گا، اس لحاظ سے موزون کی جمع ہے۔ بعض حضرات نے موازین کو یہ کہا ہے کہ یہ میزان کی جمع ہے، یہ میزان کی جمع ہے۔ پھر کیا نام کی یہ جو اعمال تولے جائیں گے یہ حقیقتاً اعمال تولے جائیں گے یا جو ہے اس سے کچھ اور مراد ہے؟ تو بعض حضرات معتزلہ نے یہ طریقے سے ہمارے لوگوں میں مفسرین میں علامہ مجاہد ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف قائم کرنا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف قائم کریں گے، عدل جو سے سارا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر موازین کو جمع استعمال کیا ہے اور قسط کو واحد استعمال کیا ہے، اس واسطے یہاں ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ موازین جمع ہے اور قسط واحد ہے تو اس کی صفت کیسے بن سکتی ہے قسط؟ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ قسط مصدر ہے اور المصدر لا یثنی ولا یجمع، جیسے زید عدل کہا جاتا ہے، الزیدان عدل کہا جاتا ہے، الزیدون عدل کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی کیا ہے لفظ قسط کو جو ہے ذکر کر دیا ہے، اور یہ واحد جمع تسنیہ سب اس کے اندر جو ہے جمع ہو جائے گا، اس واسطے مصدر کا جو ہے ایک قاعدہ ہے۔ تو یہ موازین کی بھی جمع بن سکتا ہے اور میزان کی بھی جمع بن سکتا ہے، اور اس کی صفت بن سکتا ہے موازین کی بھی اور میزان کی بھی اور میزانان کی بھی بن سکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر زوات محذوف ہے، اور نظر موازین زوات القسط، وہ میزان عدل والے ہوں گے، یعنی اس سے عدل کو ظاہر کیا جائے گا اور عدل و انصاف کا معاملہ اس سے ظاہر ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہاں زوات القسط کی تفسیر کی جاتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ ہے للقسط مراد ہے کہ عدل و انصاف کے قائم کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ قائم کریں گے، مگر اس کا تعلق تو اضافت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اضافت نہیں ہے۔ بہرحال ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، میزان اللہ تعالیٰ قائم کریں گے اور وزن اعمال ہوگا۔ لیوم القیامت کا لام جو ہے بعض حضرات نے کہا کہ یہ ظرفیہ ہے، اور یوم القیامت مطلب کیا ہے، قیامت کے دن میں جو ہے حساب کتاب کے واسطے میزان عدل جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ لام تعلیل ہے، مفعول لہو کے درجے میں ہے، لحساب یوم القیامت، قیامت کے دن کے حساب لینے کے واسطے کیا کریں گے، ہم میزان قائم کریں گے۔ آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنو آدم کے اعمال اور ان کا قول جو ہے تولا جائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے یا اعمال والے تولے جائیں گے، اس میں بڑی بحث ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اور بہت سے روایات وغیرہ دریز کیا ہے، یہاں استدلال بھی کیا گیا ہے کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، کیا ہوگا، بڑا موٹا ہوگا اور بڑا لمبے قد والا ہوگا اور طویل اور کیا نام کی سمین، موٹا تازہ ہوگا، اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تولا جائے گا کہ یہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے ما تعدل جناح بعوضۃ، لیکن اس کا وزن جو ہے
मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। मालूम क्या हो, इससे क्या मालूम होता है कि आमाल वाले तौले जाएंगे, आमाल वाले तौले जाएंगे। ये तरीके से बाद रात ने कहा कि आमाल ही को तौला जाएगा। फिर इश्काल पैदा होता है कि आमाल को कैसे तौला जाएगा। आमाल तो अर्ज हैं, आराज को कैसे तौला जा सकता है। हमने नमाज पढ़ी, फजर की बड़ी लंबी लंबी क़िरात किया और बड़े अच्छे से तवाज़ु से क्या किया, रुकू सजदा किया, अल्लाह के अज़मत व जलाल को सामने रखा और बड़े एहतराम से नमाज पढ़ी और इखलास को ही मद्देनज़र रखा। लेकिन जब क्या नाम की नमाज पढ़ के सलाम फेरा तो कहीं नमाज नज़र नहीं आ रही, कैसे उसको तौला जाएगा। ये तो आराज हैं। रोज़ा रख लिया शब बारात का और कहीं क्या नाम की उसका कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि रोज़ा कहाँ कितना वज़न है। तो ये है कि इब्न अब्बास ने फरमाया इन्नल आमाल ततजस्सदु, आमाल को चाहे अच्छे आमाल हो चाहे बुरे आमाल हो उनको क़यामत के मैदान में जिस्मानी शक्ल दी जाएगी। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह बहुत चीज़ों को कादिर है। अल्लाह ताला जिस्म देंगे और क्या है उसको तौल देंगे। और हमारे हजरात बशायर रहमतुल्लाह अलैह इस ज़माने में अब और जवाब दे रहे हैं। तो शेख नूस रहमतुल्लाह अलैह ने भी जवाब दिया, दूसरे हजरात मुहद्दिसीन जो आज पढ़ा रहे हैं वो भी जवाब देते हैं कि किसी ज़माने में अगर इश्काल रहा होगा कि आराज को नहीं तौला जा सकता, लेकिन आज तो तौला जा रहा है। ऐलान हो जाता है, घड़ी में सुइयाँ लगी हुई हैं, नंबर लगा हुआ है, इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ रह करके बता दिया करते हैं साहब का नाम की हवाई जहाज़ वाले कि दिल्ली में ये मौसम है और आगरा में ये मौसम है, लखनऊ में ये मौसम है, सऊदी में ये मौसम है, यहीं से बता दिया करते हैं। इस ज़माने में कोई इश्काल नहीं रहा। फिर अल्लाह ताला के लिए क्या इश्काल है। अल्लाह ताला जैसे चाहे फैसले फरमाए, हमें इसमें कोई लेकिन बहरहाल हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझने की ज़रूरत है। ये बहुत इख्तिसार के साथ मैं आप सामने बयान कर रहा हूँ और भी इसमें शक्लें बयान की जाती हैं। तो बहरहाल इन आमाल बनी आदमा व कौलहुम यूज़न, यहाँ दो नुस्खा है, एक तो कौल का नुस्खा है और अक़वाल का नुस्खा है। अगर आमाल के साथ अक़वाल जिक्र किया गया है तो कोई इश्काल की बात नहीं है। ये भी जमा का सिगा है, वो भी जमा का सिगा है, सबके आमाल भी तौले जाएंगे और सबके अक़वाल भी तौले जाएंगे। लेकिन जिस नुस्खे में बजाय अक़वाल के कौल है वहाँ क्या किया जाएगा। तनासुब नहीं रहा, बजाय तनासुब का एतराज़ होता है। उसका जवाब शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इनायत फरमाया कि आमाल और अक़वाल ये दो चीज़ें हैं। आमाल का ताल्लुक़ जो है वो आज़ा व जवारे से है। हाथ से भी काम करते हैं, आँख से देखते हैं, बुरी निगाह डालते हैं, गलत निगाह डालते हैं, ये तरीके से हैं। कान भी एक अमल करता है। ये आमाल सब हैं और आँख का, कान का, हाथ का, पैर का, सब चीज़ का अमल है। तो जवारे ज़्यादा हैं, उन जवारे के ज़रिए जो अमल किया जाता है उन आमाल के लिहाज से क्या नाम की जमा इस्तेमाल किया गया है। और कौल का ताल्लुक़ सिर्फ ज़ुबान से है। आमाल का ताल्लुक़ तो जिस्म के सारे आज़ा से है और कौल का ताल्लुक़ जो है किससे है, वो ज़ुबान से है। इस वास्ते यहाँ क्या जिक्र किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ज़ेरक कौन हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा कवी दिमाग कौन हो सकता है। आप जैसा कवी दिमाग और आप जैसा ज़हीन न दुनिया ने पैदा किया, देखा और न देखेगी। कुरान करीम की आयात के आयात नाज़िल हो रही हैं और आप एक बिल्कुल सुना दे रहे हैं। शुरू में क्या करते थे, शुरू में तो ये होता था कि जिब्राइल अमीन सुनाते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी दोहराते थे कि जो चीज़ ज़बान चढ़ जाती है उसका पढ़ना आसान होता है। लेकिन अल्लाह ने मना फरमा दिया कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही, आपको जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है
इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, हम आपके दिल दिमाग में महफूज भी कर देंगे और आपकी ज़ुबान से पढ़वा देंगे। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते थे जब जिब्रील अमीन सुनाते थे, फिर जितना सुना के जाते थे सारा का सारा सहाबे कराम को सुना दिया करते थे। और आपने एक लफ्ज़ के बारे में क्या किया, खयानत नहीं किया है, कहीं अमाज़नीन, कहीं कोई खयानत नहीं किया, कोई कमी नहीं किया है। बहरहाल तो कौल को वाहिद जो जिक्र किया है उसका एक मकसद ये हो गया कि ज़ुबान एक है, इस बात पे वाहिद जिक्र किया गया इशारा करते हुए, और बाकी आमाल जो जिस्म के हैं आज़ा व जवारे ज़्यादा हैं, इस वास्ते जमा का सिगा इस्तेमाल किया गया है। फरमाते यूज़नो, सबको सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कुरान की आयत भी आई और क्या नाम की ये रिवायत आ रही है, वक़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमिया, मुजाहिद ने कहा कि क़िस्तास जो है और रूमी ज़ुबान में अदल का नाम है, क़िस्ता यौमुल क़ियामा, क़िस्तास क्या है। दूसरी का अल्लाह ने इरशाद फरमाया है वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, कुरान का लुग़त तो क़िस्तास है, लेकिन इसको काफ के ज़म्मा और काफ के कसरा दोनों के साथ कहा जा सकता है। ये रूमी ज़ुबान में अदल का नाम है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तो इसके कायल हैं कि कुरान करीम में जो अल्फाज आए हैं सारे के सारे अरबी हैं। अब कैसे सारे सारे अरबी हैं, इसलिए फरमाते हैं कि दूसरी ज़ुबान के अल्फाज भले से हों, लेकिन क्या नाम की तवारुद हो गया, जिस तरीके से दूसरी ज़ुबान में इस्तेमाल है वैसे अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल हो गया। इसी तरीके से जिस लफ्ज़ को दूसरी ज़ुबान से लेकर के किसी ज़ुबान में इस्तेमाल कर लिया गया तो उस ज़ुबान का लफ्ज़ भी हो गया, उसका भी हो गया। और ज़ुबानें सारी अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं। और बाहज़रात ने कहा कि फिर कुरान कुल्लु लिसान, कुरान में हर तरह के अल्फाज किस्म के अल्फाज दिए हुए हैं। ये भी एक लंबी बहस है। वक़ाल अल-क़िस्तो मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल, क़िस्त जो है मुक़सित का मस्दर है और उसके माने क्या आते हैं, मुक़सित के माने आदिल के आते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह मुक़सितीन को क्या करता है, पसंद करता है। और क़िस्त से मुक़सित आ गया, क़िस्त के माने आते हैं अदल के और क़स्त के माने आते हैं जुल्म के, ये दो जहतैन है। वाम्मल क़ासिद फ़हुवल जाइर, उसी से कहा जो क़स्तुन जो है जुल्म के माने में आता है और ज़ालिम के माने में आता है। तो अब मुक़सित कैसे हो गया, एक मुक़सित से ये क़िस्त कैसे हो गया, उसका जवाब एक दिया जाता है कि मुक़सित जो है वो बाब इफ़ाल में गया तो मज़ीद में मुजर्रद ही से तो गया है। दूसरे का नाम जो माना के इख्तलाफ है वो वहाँ जा करके बाइफ़ाल में हमज़ा सर्व का आता है, जो माना उसके मादे को होता है बाइफ़ाल में जाके उसका उल्टा और खिलाफ हो जाता है। बहरहाल वाम्मल क़ासिद फ़हुवल जाइर, इस सिलसिले में सईद जुबैर का और हज्जाज ज़ालिम का वाक़या जिक्र किया जाता है। बहरहाल वो तफसील आगे है। आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस जिक्र किया। अब तक तो बाब था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बाब में बहुत सारे मसाइल साबित होते हैं, इससे बड़े बड़े बाब कायम किया है। आगे हदीस जिक्र किया है हदसना अनसाब क़ाल हदसना मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल अन माज़ अल-क़अक़ा अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये आमन इश्काब की रवायत है और इससे पहले रवायत से मुनासबत यह है कि ये हदीस भी गरीब है और हदीस नीयत भी गरीब है। मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल जो है उमारा से लेने में मुतफ़र्रिद हैं, उमारा अबू ज़ुरआ से और अबू हुरैरा से। ये हाल हदीस उमर का भी है, लेकिन ये गरीब इसनाद के लिहाज से है, गरीब वजूद के लिहाज से नहीं है कि नादिल वजूद है। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान रहमान खफीफतान लिसान, दो कलमे हैं अल्लाह को बहुत महबूब हैं।
یہ کلمے محبوب ہیں، اور پھر جب کلمہ محبوب ہے تو جو صحیح زبان ادا کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ خفیفتان اللسان، اللہ کے ہاں محبوب کلمہ ہے تو ذرا جو ہے وزنی بھی ہوگا اور پڑھنے میں ثقیل بھی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ زبان سے ادا کرنا ان کا بہت آسان ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، زبان پہ آسان تو ہو سکتا وزن بھی کم ہو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس کا وزن بہت ہے۔ یہ ثقیلتان فی المیزان سے کیا کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کو قائم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس کے آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کا اشارہ کر دیا کہ مجلس آخر میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور تسبیح امام بخاری ختم کر دیا، اور جنتیوں کی زبان میں خطبہ ہوگی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور بھی مناسبات ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہوئی آپ کی کتاب بخاری شریف۔ جی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ جو ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو متضمن ہے۔ لا الہ میں کیا کیا ہے؟ سب کی نفی کر دی گئی ہے، اور ایک اللہ کا کیا کیا گیا ہے؟ اس بات کیا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ تنزیہ کا کلمہ ہے، اور بحمدہ تحمید کا کلمہ ہے۔ سبحان اللہ تنزیہ کلمہ ہے، اللہ تمام نقائص سے تمام عیوب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور بحمدہ احمد و بحمدہ الحمدللہ الحمد بحمدہ، یہ بحمدہ جو ہے متعلق ہے احمد و بحمدہ کے۔ حمد کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا جامع ہے، اور یہی مضمون پایا جاتا ہے سبحان اللہ العظیم میں۔ سبحان اللہ کے اندر کیا ہے؟ تنزیہ پائی جاتی ہے، اور اس کی صفت جو عظمت بیان کی گئی ہے اس عظمت کے لحاظ سے جو ہے تحمید بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے اس کا تعلق ہوا کتاب الایمان، اور اس کا ختم کیا ایمانیات پر۔ اس سے بھی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کیا ہو گیا؟ ثبوت ہو گیا، اس سے کیا ہو گیا؟ ایک طرح کا جوڑ ہو گیا۔ اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے اس کے منافع حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ ان کے مضامین سے نکلتا ہے۔ امام بخاری کا ذہن کہاں تک چلا گیا وہ تو امام بخاری جانتے ہیں، لیکن امام بخاری کے علوم سے استفادہ کرنے والوں نے یہ سمجھا کہ اتنی چیزیں جو ہیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ توفیق سے